किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी मोदी સાહેબ માય ડિયર ફ્રેન્ડ ગુજરાતને શું નથી આપ્યું 24 કલાક વીજળી લોકોને જે સારવાર આપી છે 5-5 લાખ રૂપિયાના જે પેકેજ આપ્યું છે ને એ જો ન હોત ને તો અત્યારે કેટલા લોકો બરબાદ થઈ ગયા હોત ખેતરો મૂકીને બરોબર પાણી ખેડૂતોને કોઈ લોન નહોતું હાલતું બેંકમાં એન્ટ્રી જ નથી નોકરિયાત નથી પગારના લોન મળે તો 3-3 લાખ રૂપિયા 5-5 લાખ રૂપિયા પાક ધિરાણની લોકો હું ગામડાનો છું 20-20 લાખ રૂપિયાની લોનો મળી લોકોને બરોબર નર્મદા શું નહીં આપ્યું એના ઉપર જ વોટ આપવો જોવો ને केजरीवाल तो एक नंबर ठग છે। ये देखिए ये गांव से हैं और ये बता रहे हैं कि गांव के लोगों को भी 20-20 लाख रुपए का लोन जो है वो सरकार की तरफ से मदद मिलती है। क्या कहेंगे यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस के तमाम विधायक वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कांग्रेस हार मान કર્યું છે એવું નથી કર્યું 70 વર્ષમાં ગુજરાતને બેઠું તો કર્યું ઘણી ઘણી સંસ્થાઓ બનાવી છે પણ જે થયેલું હે પૈસા બધા બહુ ખાઈ ગયા ભાજપમાં પૈસા તો ખાઈ જ છે કૌભાંડ તો થઈ છે પણ સામે વિકાસ એટલો કર્યો રોડ રસ્તા ટ્રાફિક બ્રિજ ભલે લોકોને જે લાગતું હોય પણ જે દિવસે ભાજપ નહીં હોય ને એ વખતે ખબર પડશે કે આરી ભૂલ થઈ ગઈ। પહેલાંના ઇતિહાસ તો મેં વાંચેલો પહેલાં એમ કહેતા ને કે બધા રાજા રજવાડા એક ના થયા અને બહારની શક્તિઓ દેશમાં ઘૂસી ગઈ। અત્યારે હાલ લોકોને ખબર નહીં હતી પણ એ ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે। જે દાળ બીજેપી નહીં હોય ને એ દાળ ખબર પડશે કે બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ। अच्छा आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? એ તો લુખ્ખું એક નંબરનું કેજરીવાલ તો ખરેખર એ તો હાવ ઠગ છે એક નંબરનું કશું કરતું નહીં એવી અડધી બોયનો શર્ટ પહેરે છે આમ ભાષણ કરે એમાં તો કોઈ નહીં એનાથી થાય જ નહીં। એ અમેરિકામાં જઈને બાઇડેન આગળ ઉભો રહે ને તો એને ગાડી મેલાટ ભાઈ હતી કે ચપરાસી જેવું લાગે છે મોદી એટલે મોદી સમજો। अच्छा यहाँ आके वो कह रहे हैं केजरीवाल की मुझे ગમે તે કરશે ને પેલો 3-3 હજાર રૂપિયા નહીં કહેતો બધાને આલ્યું એટલે હું ભિખારી સમજે અને નોકરીઓ આલું 10-10 લાખ રૂપિયા નોકરી એટલી જ નહીં પણ પહેલાં અહીંયા હાલ ને પહેલાં દિલ્હીમાં તો પ્રોફેસર પગાર કરવાના પૈસા નહીં 2-2 મહિને પગાર નથી થતો સાહેબ સાચું। पंजाब में भी है। પંજાબમાં એવું જ થયું છે તું કંઈક સ્પેસિફિકેશન તો કર કે ગરીબ મહિલાઓને જ રૂપિયા હાલ તો એને એવો કોઈ નીતિ નિયમ નહીં બનાવ્યો કરોડપતિને બૈરાને પૈસા હાલવાના કમસે કમ ભેદભાવ તો હોવો જોઈએ ને આ આવું છે બધું। केजरीवाल ने यहाँ आके कहा है कि मेरे को गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, लाडला बनाया, भाई बना दिया, बेटा बना दिया गुजरात। એ મોદી સાહેબનું અનુકરણ કરે છે કે આવું ભાષા બોલો તો લોકો આકર્ષાય પણ તમે ઇલેક્શન આવશે ને એટલે કોઈ ન મળે ખરેખર ન મળે। अच्छा कितनी सीटें देख रहे हैं 182 में से बीजेपी? એ તો કમસે કમ 125 તો પાકી એટલું તો આવશે જ એમ કારણ કે બીજેપીના અને અહીં આમ આદમી પાર્ટીના જે વોટ મળશે ને એ જે બીજેપીના નથી ને એ મળશે। બીજેપીના વોટ બહુ નહીં તૂટવાના। અમારો તો નિયમ છે કે પ્લગમાં હાથ ઘાલવો પણ પંજાન ન હાલવો કરંટ લાગે ચાલી લેવો પણ કમળમાં પેલા પંજાન તો ન દબાવો સમજ્યા તમે। બધાને બધું કૌભાંડ કર્યું મને તો બહુ પહેલેથી ખબર કને હું આખા વલસાડના જે હાગના હતા ને પેલા જંગલો એ બધા વેચી મારેલા છે। केम छो गुजरात। जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आते जा रहा है रोज कुछ ना कुछ समीकरण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक जो 2017 में 31,000 वोट से जीते थे गिर सोमनाथ जिले की तलाला सीट से आने वाले बगाबाई भारत उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार के साथ शामिल हो चुके हैं। और ना ही सिर्फ अपने परिवार के साथ बल्कि तमाम उनके जो हजारों समर्थक हैं उनके साथ उन्होंने बीजेपी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया और लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं। और इसी बीच गुजरात में कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी जो कि 2017 के बाद से गायब रही, अरविंद केजरीवाल गायब रहे, अब वो एक नया इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, प्लीज़ मुझे 5 साल के लिए मौका दे दीजिए। तो यहाँ पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जहाँ एक तरफ लगातार चार्टर्ड प्लेन से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का आना लगा हुआ है, प्रचार प्रसार में इतना पैसा जो है झोंका जा रहा है, फिर जनता के बीच जाकर के ये कहना कि हमारे अकाउंट तो खाली पड़े हुए हैं और हमारे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, इसलिए एक बार मौका दे दो। अब इस चुनावी समीकरण को देखते हुए गुजरात की जनता का क्या मूड चल रहा है, किसको वो इस बार सीएम की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, आइए उनसे खुद बात करेंगे और जानेंगे उनका मूड। हार्दिक बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर लोकल ही हूँ मैं, सेक्टर गांधीनगर के हैं। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार? ऐसे तो महंगाई सब बढ़ गई है, लेकिन जो डेवलप हो रहा है अच्छा हो रहा है, सभी जगह पे अच्छा हो रहा है।
अच्छा, पिछली बार गांधीनगर की बात की जाए तो कांग्रेस ने लीड ली थी, इस बार का क्या समीकरण लग रहा है गांधीनगर क्षेत्र का? ऐसे तो जनरल अच्छा ही है, सब बीजेपी ही लग रही है मुझे। जी सर, आपका क्या नाम? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। आप भी गांधीनगर के रहने हाँ, गांधीनगर के रहने वाला हूँ। वाले? पिछली बार कांग्रेस ने लीड ली थी यहाँ से, इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं कांग्रेस आएगी। वाले तो फूट जाते हैं। हाँ सब। अभी तो कांग्रेस के कितने विधायक वो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हाँ कांग्रेस में कुछ फ्यूचर ही नहीं है उनका, तो क्यों रहेंगे? कांग्रेस में कोई नहीं जाएगा। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या आम कहेंगे? आदमी पार्टी दूसरा कुछ नहीं, कांग्रेस की थोड़ी सीटें कम करेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। वो तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डर गई, बीजेपी को तकलीफ हो रही है। नहीं, कुछ डरती नहीं है। ये तो बकवास आदमी है केजरीवाल, तो जुट्ठा है, मक्कार है, ऐसा कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ वो लगातार चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल, और अब यहाँ आके एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, प्लीज 5 साल के लिए मौका दे दो। आदमी है, बिल्कुल मक्कार आदमी है। ऐसा तो पॉलिटिक्स में चलाना ही नहीं चाहिए। फ्री का कुछ नहीं मिलता दुनिया में। फ्री बिजली नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ फ्री में मिलता ही नहीं, कैसे मिलेगा? सब कामचोर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्या देश को ऐसे बर्बाद करने का है? ऐसा आदमी कभी नहीं चाहिए, दिल्ली में भी नहीं आना चाहिए। वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ के लोगों ने अपना भाई और बेटा बना लिया। काम दो और काम के बदले में पैसा दो। मुफ्त में तो भिखारी को भिख भी नहीं देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम तो श्याम जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो गुजरात का ही हूँ, बनासकांठा वाव तालुका से। बनासकांठा के। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? अब तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ हाँ, तो बीजेपी आएगी 100%। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? मतलब बीजेपी तो काम करती है ना दी, मतलब से ना, इसलिए आने हो गए। अच्छा, बनासकांठा की अगर बात की जाए तो वहाँ पिछली बार कांग्रेस को बहुत सीटें मिली थी, इस बार क्या लग रहा है कांग्रेस का बनासकांठा में? वहाँ पे तो बीजेपी आएगी, इस बार बीजेपी आएगी वहाँ पे 100%। हमारे वाव तालुका में, थराद तालुका में, सब में बीजेपी आएगी। सब में बीजेपी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी? नहीं, हम तो बीजेपी को ही मानते हैं, तो नहीं केजरीवाल को नहीं मानते, क्योंकि वो तो मुफ्त हमको देने वाला है। तो हम मुफ्त का नहीं लेते हैं, हम अपने कमा कर ही लेते हैं, हमको मुफ्त नहीं चाहिए कुछ। हमारा वही मानना, और वो नहीं चलेगा गुजरात में, अरविंद केजरीवाल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? अरे नहीं तो चलेगा। कह रहे हैं मेरे को भाई और बेटा बना दिया गुजरात की जनता। नहीं, वो तो नाटक कर रहे, वो नहीं चलेगा। मोदी ही चलेगा गुजरात में, और गुजरात में मोदी 150 प्लस ही सीट लाएगा मोदी। 150 प्लस। हाँ 150 प्लस। ठीक है जी सर, क्या नाम है आपका? ये रहेगा। क्या नाम है आपका? संजय चौधरी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? कच्छ के। कच्छ के हैं। क्या मूड है इस बार कच्छ की जनता का? सर सरकार तो जैसे हम तो जहाँ पे रहते हैं अबड़ासा तालुका में, नलिया में, वहाँ पे तो बीजेपी कांग्रेस चेंज होता रहता है। अभी बीजेपी चल रही है, पर हो सकता है बीजेपी का ज़्यादा चांस है, बीजेपी के ज़्यादा चांस है। क्योंकि आम आदमी तो चलो सिटी में तो ज़्यादा दिख रहा है, वो गाँव में उधर नहीं है इतना। नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं है। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? इस बार थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं मैदान में। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आम आदमी पार्टी के जो आई है ना, उससे होएगा नुकसान कांग्रेस को। कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी को नहीं होगा। थोड़ा होगा, जरूर होगा। बीजेपी को भी वही टक्कर जरूर मिलेगी। जैसे अभी 2 पार्टियां होगी, पहले एक ही पार्टी थी जो बहुत कमजोर थी, अभी 2 होगी थोड़ी अच्छी अच्छी, तो थोड़ा मजा आएगा। थोड़ी सरकार में होना चाहिए, नहीं तो अकेला कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए, तो वो देखेंगे जनता को। अगर खुद राजा है तो वो नहीं देखेंगे। जी सर। और क्या अपील करेंगे युवाओं से, किन मुद्दों पर वोट दें इस बार? जी सर, एक तो ये बेरोजगारी है मेन, तो हम सब उसके लिए पढ़ रहे हैं, इधर इतनी कच्छ से यहाँ पे आ रहे हैं गांधीनगर, तो कुछ रोजगार के लिए वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए। यहाँ पे गुजरात में आती है वैकेंसियाँ, फिर रुके रहते हैं आप 2-2, 5-5 साल। आपका क्या नाम है सर? शिवम नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से हूँ। यहाँ पढ़ाई करते हैं या जॉब? स्टूडेंट हूँ मैं। बिहार से गुजरात? हाँ हाँ, मतलब स्कूलिंग मेरी का चेंज। यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, एक डेढ़ साल हुआ मेरे को। 1.5 साल। क्या समीकरण देख रहे हैं इस चुनाव का? आप भी यहाँ पे अब लंबे समय टिकने वाले हैं, क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं रहेगी तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही रहेगी, क्योंकि और स्टेट के कंपैरिजन में जो है, मतलब गुजरात अलग ही है, मतलब उसका जो एक रौनक होता है वो अलग ही है। कोई भी आप स्टेट में चले जाइए तो जिस हिसाब से डेवलपमेंट वगैरह चलते रहती है, तो वो तो बीजेपी की आएगी। हाँ, 1-2 अगर पॉइंट कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ 1-2 पॉइंट निकलेगी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ तो काम होते ही रहता है। चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब तो अच्छे से चल ही रहा अपना। कुछ चीज़ें धीरे हैं, कुछ चीज़ें फास्ट हैं। करप्शन रेट भी बहुत कम है यहाँ पर, तो मेरे को लगता नहीं गवर्नमेंट चेंज होंगी, लोग तो उन्हीं को पसंद करेंगे जो यहाँ पर हैं। देखिए, आपने बिहार का जिक्र किया, अभी नई सरकार बन गई वहाँ दोबारा से, नीतीश ने आरजेडी के साथ बनाई, और हमने देखा वहाँ एकदम से क्राइम बढ़ गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई, वहाँ क्राइम बढ़ गया। गुजरात में इतना क्राइम नहीं देखने को मिलता। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
नहीं, गुजरात में तो मैं मानूंगा कि क्राइम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज़ का डिपेंड वो करता है कि मतलब नेता कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा सपोर्ट कर रहा है। अब आप बिहार में देखिएगा तो बिहार में जो शुरू से जो आरजेडी के नेता है वो हमेशा मतलब गुंडे के बल पे उनकी सरकार हमेशा रही है, चाहे पहले वोटिंग से हो चाहे कभी भी हो। तो जब से वहाँ रही है तो उनका गुंडे का सपोर्ट है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। बात रहा पंजाब का, वो डिपेंड करता है कि नेता कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और कौन से कहाँ से उनको फंडिंग आ रही है। तो अगर उनको गुंडों से फंडिंग मिल रही है तो ऑब्वियस है कि वो गुंडों को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर गुजरात में उनको गुंडों से फंडिंग आती नहीं है, सब यहाँ पर जो है बिजनेसमैन ही अधिकतर जो फंड प्रोवाइड करते हैं बीजेपी को, तो फिर क्या सपोर्ट है वो लोग गुंडे को करेंगे। तो ये एक रीज़न है, मेन चीज़ फंडिंग का है, मैटर होता है। तो यही चीज़ मेन रीज़न है क्राइम का। चलिए, आपने गुजरात इलेक्शन का बता दिया, अब 2024 का बिगुल बज चुका है और नीतीश कुमार इसीलिए बीजेपी से हटे। वो कह रहे हैं कि अब तो मोदी के सामने मैं ही हूँ। तो जब वो बात है 2000, अभी तो बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट रेट बढ़ रहा है, जो जागरूक है वो तो हटाना भी बहुत मुश्किल है। और कंपटीशन में अभी कोई खैर है नहीं। आम आदमी पार्टी है तो अभी ऐसा नहीं है कि जीत गई पंजाब तो अब सीधे पीएम ही बन जाएगी, तो अभी कंपटीशन में कोई है नहीं। कांग्रेस का देख रहे हैं हालत बहुत ख़राब है, वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अपना कोई उनका उम्मीदवार नहीं है, कोई चीज़ जो खड़ा कर सके कि हाँ कोई मेन फेस है कि हाँ उसके बल पे है। राहुल गांधी का भी मेन फेस बनते नहीं है, वो पीछे हट जाते हैं। तो ना उनका अध्यक्ष ना वहाँ पर टिका हुआ है, तो कंपटीशन है नहीं सर। कंपटीशन नहीं है तो गवर्नमेंट कहाँ चेंज होगी। तो लोग मजबूरन बीजेपी को देंगे ही देंगे जब कंपटीशन नहीं है। नीतीश बहुत तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। कोई फायदा नहीं है सर उनका, तो वो खुद गठबंधन से सरकार चल रही हो, क्या पीएम बनेंगे। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे थे, कभी आरजेडी। तो पूरी सीट तो पूर्ण बहुमत उनको मिल नहीं रही है बिहार में। बाईपोल इलेक्शन, महागठबंधन 8 पार्टियां और वर्सेस बीजेपी, बीजेपी जीत गई गोपालगंज में। सर वो तो बाईपोल तो चलते रहती है, वो उसका अपने जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी जीतती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन इलेक्शन जब सीएम वगैरह का होता है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जातिवादी चलते हैं। लोग जो है वो खुद ही वोट करेंगे। यादव हैं तो यादव लोग कोई वोट करेंगे, जो बैकवर्ड कास्ट है वो उधर ही करेंगे। भले वो देखेंगे नहीं कि कौन उनको डेवलप कर रहा नहीं कर रहा, वो नहीं देखते हैं। तो इसी चलते जो है वहाँ पर वही चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर, आपका क्या नाम है? सर अवनीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर। गोरखपुर के? जी। अच्छा, यहाँ पे कितनी देर से हैं? अभी रिसेंटली आए, 4-5 महीने हुआ है। 4-5 महीने हुए। चुनाव का माहौल तो देख ही रहे होंगे, क्या चाह रहे हैं यहाँ, कौन बनना चाहिए सीएम? सर कंपटीशन तो है ही नहीं आएगी तो बीजेपी। कंपटीशन नहीं है? नहीं लग नहीं रहा है। 5 महीने से हो, माहौल तो देख ही रहे होंगे। हाँ हाँ आम आदमी पार्टी के नेता है केजरीवाल, वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। आ रहे हैं तो वो तो उनका वो है ना कि अपना तो क्या बोलते हैं कैंपेन करेंगे ही, बट आएगी तो बीजेपी। आएगी बीजेपी। जी। सर क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर से। गांधीनगर के रहने वाले हैं। इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव में? और परिवर्तन चाहते हैं हम। परिवर्तन चाहते हैं। कौन आना चाहिए? कोई भी आए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं। चाहे कोई भी, बाकी कोई भी पार्टी? पार्टी कोई भी आए, ऐसा कुछ नहीं कि भाजपा ही आए, आप आए कि कांग्रेस आए, कोई भी आए, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या डिमांड है कि सरकार जो भी आए ये पूरा करे? हो सकता है सब पूरा करें, जो भी आए सरकार, आशा है नई सरकार के पर, कोई भी आए सरकार, विश्वास रखते हैं हम। क्या नाम है आपका? पंकज, कहाँ के रहने वाले हैं? सेक्टर 4 गांधीनगर। अच्छा, गांधीनगर। क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो कोई भी है, कोई फायदा तो कोई करने ही नहीं वाली। फिर भी एक इंट्यूशन की ये सरकार होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो कोई कह सकते इस बार? कुछ नहीं। ठीक है जी सर, आपका क्या नाम है? अच्छा, मुंह में वो क्या नाम है सर आप? सर जी तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में दिक्कत है। बस ये बता दीजिए किसकी सरकार चाह रहे हैं? क्या सर जी? सरकार किसकी आनी चाहिए इस बार? सरकार को चेंज होना चाहिए, मुझे ये बताया, क्योंकि जो महंगाई की वजह से हम जो सब देख रहे हैं ना, जैसे पेट्रोल का भाव है, सब जो गरीबी की जो अभी है ना, इसके वजह से सरकार को चेंज कंपलसरी होना। कौन सी सरकार चाह रहे हैं? मैं तो सपोर्ट कांग्रेस को करता हूँ और कांग्रेस ही आनी चाहिए, मैं तो पहले से ये बोलता हूँ। और कांग्रेस के तो तमाम बड़े नेता हों, विधायक हों, 10 बार के एमएलए रहे मोहन जी, वो भाजपा में आ गए हैं। क्या नुकसान नहीं होगा कांग्रेस? कांग्रेस को कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सबको सिखा के जाती है, ठीक है, इसलिए नुकसान की कोई वजह नहीं है अभी तक। ठीक है जी सर, आपका क्या नाम है? जिग्नेश, कहाँ के रहने वाले? गांधीनगर। किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, क्यों आनी चाहिए मोदी सरकार? सही है मोदी। अच्छा, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता पिछली बार मुख्य विपक्षी के तौर पर आए थे, 77 सीटें जीती थी। इस बार जितने बड़े बड़े विधायक हैं वो सब जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सही है ना, मोदी आना चाहिए, मोदी सरकार सही है। मोदी हमारा, मैं कोई भी हो कुछ भी हो, सही है मोदी सरकार।
पिछली बार गांधीनगर में कांग्रेस ने लीड ली थी, इस बार का क्या लग रहा है आपको? अभी मोदी आएगा। बीजेपी आएगी? ठीक है, धन्यवाद सर।